अच्छा बेटा, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व प्योर मैथ्स 3 पेपर, जो कि A2 लेवल मैथ्स का पेपर होता है। और हम लोग पेपर 3-2 करेंगे। ए लेवल मैथ्स 9709 पेपर 3-2, एंड इट इज ऑफ May June 2023. The paper is of 1 hour 50 minutes. Calculators are allowed. Again, instructions are same which you are following in the AS maths. Total marks for this paper is 75 marks. Okay, so let's just start this paper. Okay, so in question number 1 it says solve the inequality. We have double modulus inequality here. So the best method over here is कि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें. अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो मॉडुलस का साइन रिमूव हो जाता है. तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, मॉडुलस साइन इज रिमूव्ड. ठीक है ना. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस ब्रैकेट 5x minus c का होल स्क्वायर. इट बिकम्स 25x square, 2 5 the 10, 10 3s are 30 over here. So it is going to be 30x plus 9 minus 2 square is 4, 3x minus 7 whole square. I'm going to expand this bracket, 9x square, 2 multiplied by 3 multiplied by 7, it is going to be 42x plus 49. I'm going to multiply this 4 with all the terms in the bracket. So देखो 9 4s are 36, x square. Then 4 multiplied by 42, it is going to be 168x. Then 4 multiplied by 49, it is going to be 196. I'm going to shift all the term on the right hand side ताकि coefficient of x square positive बन जाए. 36x square minus 25x square minus 168 plus 30x plus 196 minus 9. ठीक है ना. तो 36 minus 25, it is going to be 11x square minus 168 plus 30, it is going to be minus 138x, and then 196 minus 9, it is going to be 187. ठीक है ना. I'm going to shift all the, I'm going to write it like this: 11x square minus 138x plus 187 is greater than 0. सही ना. इसको हमने इस तरह लिख दिया ताकि एक प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया बेसिकली. लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो. Now what I'm going to do, I'm going to put this equation, this is the quadratic inequality here. ठीक है ना. तो कभी भी quadratic inequality हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो हम लोग सबसे पहले इसको फॉर अ टाइम बीइंग लेट जस्ट मेक इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है ना. हम x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं. सो वी कैन यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी कैन यूज मिडिल टर्म ब्रेकिंग. आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें. इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी -121x प्लस 17x. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है. यू टुक 11x कॉमन, 11x माइनस 11 बच गया. यू टुक 17 कॉमन, ये हो गया 17, इट इज माइनस 17x. तो यू टुक माइनस 17 कॉमन, you got x minus 11 here equal to 0. You got two values of x here. Since we have greater than equal to 0 की, greater than 0 की inequality है हमारे पास. ठीक है ना. So when you have greater than 0, so when is the y is greater than 0? Y is greater than 0 over here. At what x values? X is greater than 11 and x is less than 17 by 11. X greater than 11, x less than 17 by 11. So this is going to be my final answer for this modulus inequality here. ठीक है जी. Moving on to the next question, that is question number 2. Solve this equation. Logarithmic function है हमारे पास. ठीक है. हमें logarithmic function की equation solve करना है.
तो सबसे पहले what I'm going to do, I'm going to use ln properties here to make a single ln over here on the right hand side. Right hand side पे देखो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट में है, so I'm going to use power rule property. It becomes ln x square. ठीक है, so I'm going to use the property of the ln over here, the quotient rule property, कि यहाँ पर बेटा दो ln के फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, so मैं इनको सिंगल में कन्वर्ट कर कर इनके एंगल्स को डिवाइड कर दूंगा. सही ना. इफ यू हैव टू एलन, कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक एलन है और राइट हैंड साइड पे एक ही एलन है और इनका कोफिशिएंट भी वन है, यू कैन कैंसिल आउट दिस एलन ओवर हियर. यू कैन डायरेक्टली राइट 2x² - 3 इज इक्वल्स टू x²/2. अब 2 क्रॉस मिला हुआ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया x². x² इज गोइंग टू बी शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ये हमारे पास बेटा ये हो गया 3x² - 6 इक्वल टू 0. 3x² इज इक्वल टू 6. x² की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू बेटा +-√2 आ गई. अब थिंग इसके बेटा यहां पर बच्चा आंसर लिखकर आ जाता है, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर. देखो x की वैल्यू, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? क्योंकि देखो ln यहाँ पर एक x, हमारे पास यहाँ पर एक एंगल है, ln का एंगल नेगेटिव में नहीं हो सकता. तो आपने एंगल x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जहां पर एंगल्स में x मौजूद है. देखना है कहीं आपका किसी x की वैल्यू से एंगल नेगेटिव तो नहीं आ रहा. अगर जिस x की वैल्यू से एंगल नेगेटिव आ रहा है बेटा, आप उसको छोड़ देंगे. योर फाइनल आंसर वुड बी x इक्वल्स टू √2 ओनली. इसकी वजह से नेगेटिव नहीं आएगा आंसर. ठीक है. Now moving on to the question number 3, it says you need to on the anagram sketch the logos of the point representing the complex number satisfying this. देखो यहाँ पर हमें एर्गन डायग्राम बनानी है, स्केचिंग करनी है हमें, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये अगर आप एर्गन डायग्राम देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. बेसिकली हमें सर्कल की डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सर्कल की डायग्राम होती है z - a का मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडियस. सही है ना. यहाँ पर रेडियस 2 है. अगर आप कंपैरिजन करो तो यू गोना फाइंड आउट कि आपके पास यहाँ पर रेडियस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. रेडियस इज 2. दैट्स फाइन, रेडियस 2 है आपके पास. अब मसला कुछ ये है कि इसका सेंटर क्या है. ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे कहते हैं सेंटर. तो यहाँ पर एक क्या है कि देखो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कराया. मैंने क्या करा, मैंने पहले माइनस कॉमन निकाला, ये हो गया -3 + 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में, ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में. इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, ये मेरे पर रेडियस 2 हो गया. अब देखो बेटा आपके पास यहाँ पर -3 + 2 आयोटा, दिस इज द सेंटर. सेंटर हो जाएगा -3, 2 और रेडियस हो जाएगा 2. सो आई एम गोना ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर. ये सेंटर हो गया. ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, -1. राइट हैंड साइड की वजह से ज़्यादा जरूरत नहीं है हमें. हमारा सेंटर कहाँ पर है? सेंटर इज -3 2. दिस इज -3, दिस इज 2. थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा. सही है ना. सर्कल का सेंटर तो मैंने लोकेट कर दिया, और द रेडियस इज 2. तो देखो राइट साइड पे भी 2, डाउनवर्ड 2, लेफ्ट साइड 2, अपवर्ड 2. अब सर्कल में ड्रॉ करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज द कंपास. तो बेहतर है कि आप जितनी क्या कहते हैं स्केलिंग अच्छी रखेंगे, आपका सर्कल इतना ही अच्छा बनेगा. मेरा खैर थोड़ा ओवल शेप बन गया है, बट देखो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ. एक मुझे ज़्यादा ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट मेरा सही बना है.
ठीक है जी। So I got this center, I got this circle, इसका सेंटर -c,2 है। सेंटर को थोड़ा सा राइट, I got a balanced graph। तो आपने तो खैर पेंसिल से थोड़ा सा इसको इतना ड्रॉ करना है कि आप जो स्केलिंग ने अपने स्केल से ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप जब कंपास से ड्रॉ करेंगे तो रेडियस 2 का आपके पास सर्कल बन जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि ऑब्वियसली सेंटीमीटर अगर आप लेंगे फ्रॉम द स्केल तो बहुत छोटा सा सर्कल बनेगा ना वो। तो आप फिर स्केलिंग इस तरह कर लें, फॉर एग्जांपल आपने स्केल में 2 सेंटीमीटर 1 के बराबर रख लें, अगर बहुत एग्जैक्ट ग्राफ चाह रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट स्केचिंग चाह रहे हैं तो। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इस पूरे सर्कल में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज द रेडियस। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मार्क करा हुआ है, द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज द रेडियस ओवर हियर, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने सही मार्क करा हुआ है, आपने रेडियस सही शो करे हुए 2 2 सेंटीमीटर के, दैट्स फाइन, सही ना। लेकिन अगर आप अच्छी स्केलिंग चाह रहे हैं तो अच्छी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आप ये जो लाइंस हैं, ये जो स्केलिंग यहाँ पर रखें, इनको बहुत एक्यूरेटली रखेंगे तो जितना अच्छा आप स्केल करेंगे उतना अच्छा आपका ग्राफ बनकर आएगा। तो अगेन इट इज स्केचिंग, स्केचिंग में बेटा अ, इतना एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो। दे नीड टू सी कि आपने रेडियस किस तरह बनाया, आपने सेंटर किस तरह बनाया है, क्या आपको पता है हाँ ये सर्कल बनाना था, ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड फॉर द पॉइंट ऑन दिस लोकस गिविंग योर आंसर इन द एग्जैक्ट फॉर्म। देखो, एक बात तो आप ये समझ लें, लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड मॉडुलस का मतलब क्या है? देखो, ये जो जेड है ना, दिस जेड ओवर है जो आपने जिसको, ये जेड जिसका आपने पाथ बनाया है, ये जेड यहां पर लाई कर रहा है, जेड यहां पर लाई कर रहा है। ये भी जेड की वैल्यू, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, सही है ना। तो किस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की लीस्ट मॉडुलस होगा? मॉडुलस होता है सेंटर से डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं, सेंटर से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आपके पास जो लीस्ट डिस्टेंस होगा वो ये हो सकता है, दैट इज वुड बी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ जेड। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा पता है? मैं मैक्सिमम भी बताता हूं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये लीस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस लीस्ट डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस का जेड है, ये लीस्ट डिस्टेंस का जेड है, इसका लीस्ट मॉडुलस होगा। अब ये निकालें कैसे हम लोग? सवाल ये उठता है हम इस चीज को निकालें कैसे? देखो सिंपल सी बात है, यू नीड टू फाइंड आउट। देखो ये सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, और यहां पर देखो बेटा आपके पास ये क्या बन रहा है? ये सेंटर के साथ मॉडुलस है, दिस इज द मॉडुलस फ्रॉम द सेंटर। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अभी मैंने ये बात क्लियर कर दी कि आपका लीस्ट मॉडुलस यहां पर होगा, इधर जो जेड की वैल्यू होगी ना उसका सबसे लीस्ट मॉडुलस होगा। तो हम निकाल दे किस तरह बेटा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस हाइपोटेन्यूज लेंथ। ये हाइपोटेन्यूज लेंथ किस तरह निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस डिस्टेंस इज 3, दिस इज 2, तो बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव √13 is going to be your hypotenuse। तो हमें तो मॉडुलस निकालना है इसका, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा इस √13 में से ये 2 डिस्टेंस माइनस कर दो, ये 2 डिस्टेंस माइनस कर दो, यानी 2 रेडियस माइनस कर दो, you're gonna have a least z modulus is going to be √13 - 2, सही है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, दे आर सेइंग सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो सॉल्विंग के लिए मेक श्योर दैट योर इक्वेशन इज इन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए? इट शुड बी, इट शुड बी इन द सेम एंगल।
सही है ना, यहाँ पर तो सेम एंगल, सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है कॉस, बट बेटा यहाँ पर हमारे पास सेम एंगल नहीं है। तो या तो आप x/2 को x बना लो, या फिर आप x को x/2 बना लो, इस वाले एंगल को। ये देखो दोनों एंगल है। तो देखो बेटा मैंने करा क्या, मेरे पास अ, अगर आपको याद हो तो cos 2x की आइडेंटिटी है, दैट इज 2 cos² x-1। अगर आपको याद हो तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एंगल डबल है तो यहाँ पर एंगल सिंगल है। ठीक है ना, 1:2 का रेशो है, यहाँ पर 1:2 का रेशो है एंगल में। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो बेटा मैंने 2 cos x, मैंने cos x को 2 cos² x/2 -1 में कन्वर्ट कर दिया, और -cos 1/2x या x/2 मैंने एज इट इज कॉपी करा, इज इक्वल टू 1। मैंने सिर्फ cos x पर रिपीट कर रहा हूं, 2 cos² x/2 का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। यहां पर एंगल और यहां पर एंगल का रेशियो देखो 2:1 का रेशियो है। यहां पर एंगल और यहां पर एंगल का रेशियो 2:1 है। तो यहाँ पर बेटा ये देखो 4 cos² x/2, 2 1 = 2 -cos x/2, और -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे -1 हो गया। तो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉस की फॉर्म में। अब आप चाहो तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, है ना। इट इज गोइंग टू बी 4 cos² x/2 -4 cos x/2 +3 cos x/2 -3 = 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने 4 cos x/2 कॉमन निकाल लिया, cos x/2 -1 हो गया। यहाँ पर मैंने बेटा 3 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया cos x/2 -1 = 0। तो बेटा आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए, cos x/2 -1, ये हो गया बेटा 4 cos x/2 +3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपके पास यह गॉट टू ब्रैकेट्स है, तो देखो यहाँ पर cos x/2 इज इक्वल टू 1 एक ब्रैकेट बन जाएगा, और यहाँ से cos x/2 इज इक्वल टू -3/4 एक ब्रैकेट बन जाएगा। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए बेसिकली कॉस की फॉर्म में। वी गॉट द रेंज हुए है 0 till 2 पाई। देखो इस रेंज के अंदर दो बातें पता चलनी है कि तो क्वेश्चन हमारे पास रेडियंस में है, सॉल्व करना है। दूसरा ये पॉजिटिव एंगल है, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमें देखने होंगे। तो अब हमारे पास तो रेंज 0 से लेकर 2 पाई तक की रेंज है, और हमारा जो एंगल है वो एक्स नहीं है, ये तो एक्स की रेंज है। हमारा एंगल तो x/2 है, हमारा एंगल x/2 है। तो बेटा मैंने पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करा दिया, ये हो गया बेटा 0 till 2 पाई। 2 पाई डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 0 till पाई हो गया। अब रेंज में हमारे पास सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। बस ये दो क्वाड्रेंट रेंज के अंदर आ रहा है। इन दोनों रेंज के अंदर, इन दोनों क्वाड्रेंट की रेंज के अंदर कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, cos x/2 1 है ना, पॉजिटिव 1 है। कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लिया। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बेटा हमने यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लिया इस रेंज के अंदर। दोनों के लिए बेटा हमने कोऑर्डिनेट सिलेक्शन कर लिए, दोनों के लिए मैं अल्फा निकालूंगा, cos इनवर्स 1 निकालूंगा। कैलकुलेटर को रीडिंग मोड में रख लें आप, क्योंकि कैलकुलेटर बेटा आपके पास सवाल में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके पास उसने जो रेंज दी हुई है रेडियंस में है। तो cos इनवर्स 1 करते हैं तो बेटा 0 आता है। अब देखो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने सेलेक्ट करा हुआ था, तो x/2 बराबर हो गया 0 के, हमारा रिक्वायर्ड एंगल, x की वैल्यू 0 हो गई, 0 × 2 0 हो गया। यहाँ पर इनवर्स निकालूंगा, cos इनवर्स 3/4 करूंगा, नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं हम लोग। तो cos इनवर्स 3/4 करा बेटा मैंने, so I got 0.72273, थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें लिखना है ताकि एक्यूरेसी लेवल बन जाए। नाउ रिक्वायर्ड एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट, रिक्वायर्ड एंगल x/2 है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा होता है पाई माइनस अल्फा। तो आई एम गोइंग टू यूज पाई माइनस आंसर, दैट इज 2.418। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन में 2 4.83 7
रेडियंस वाले एंगल है बेटा, इस वजह से इनको 3 सेंटीमीटर में आंसर देंगे 4.84। ये रेडियंस में आंसर हो गया। ऑलरेडी लिख दें, ज्यादा अच्छा है, आपने आंसर एक्यूरेट फॉर्म में दे दिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + y iota is denoted by a where y is real number and y is less than 0. It is given that f of a is a cube plus a square minus 2a. Find a simplified expression of for f of a in terms of y. तो देखो ऑब्वियसली दे आर आस्किंग यू कि आपके पास ये f of a है एंड a इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये a की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। दे आर आस्किंग यू कि f of a को जरा इन टर्म्स ऑफ y सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। तो मैंने बोला है ये जो f of a लिखा हुआ है इसमें a क्यों आ रहा है, मैं काम करता हूँ, इसमें से a कॉमन आ रहा है, तो पहले मैं जरा a कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन है, देखो यहाँ पर मैं 2 + y आयोटा लिखूंगा और यहाँ पर भी 2 + y आयोटा का होल स्क्वायर, ये +2 + y आयोटा देन -2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो 2 + y आयोटा एज रहा, इधर मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y आयोटा, तो इट्स बिकम 4y आयोटा। y आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो चलो मैं लिख देता हूँ इस स्टेप, और ये -2 हो जाएगा, -y आयोटा हो जाएगा -2 और ये ब्रैकेट क्लोज। नाउ इट बिकम्स 2 + y आयोटा। अब देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, सो आई एम गोना राइट 4 + 4y आयोटा -y स्क्वायर -2 -y आयोटा -2। मैंने सबको एड्रेस लिख दिया ताकि अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी लिखूंगा मैं इनको। अब देखो +4 -2 -2 कैंसिल, सही ना। और यहाँ पर बेटा आपके पास हो जाएगा 2 + y आयोटा, देन यू कैन हैव 4y आयोटा -y आयोटा इज 3y आयोटा -y³, ये लेफ्ट ओवर हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करा दो, मैंने इसलिए एक कॉमन निकाल लिया ताकि एंड में फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन, इनसाइड सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए और एंड में इसको मल्टीप्लाई करा दें हम लोग। तो देखो 2 3 6 y आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय y³ 2y³ हो जाएगा, y आयोटा यहाँ पर मैं जरा क्लियर कर लूँ, ये y² लिखा हुआ है, तो 2y मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y² 2y², y आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3y आयोटा, तो इट इज गोइंग टू बी 3y² आयोटा स्क्वायर, y आयोटा मल्टीप्लाई बाय -y², तो इट इज गोइंग टू बी -y³ आयोटा। तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू सिंप्लीफाइड, 6y आयोटा रिमेन सेम, -2y² रिमेन सेम, 3y² आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह -1 है, so I'm going to write minus plus minus over here -y³ into iota। अभी वो लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें अगर कोई है तो, वरना सबको एज इट इज रहने दें। -2y² -3y² इज -5y², ये तो एज इट इज आ गया, और 6y आयोटा -y³ आयोटा, तो मैंने इसमें से 6y -y³ आयोटा कॉमन लेकर यहाँ पर लिख दिया। मैंने इसको इस तरह लिखा है कि बेटा हमारे पास रियल पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, मैंने रियल पार्ट को अलग लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा कॉमन लेने के बाद अलग लिख लिया। ठीक है जी। In next part they are saying given that real part, this mean real part, ठीक है, this mean real part of f of a, f of a का real part क्या आ रहा है, -5y², कह रहा है वो बराबर है -20 के, यानी -5y², this value over here the real part of f of a is equals to -20, मैंने ठीक है। So if you just simplify it, you'll get the value of y, y² equals to 4, और y की वैल्यू बेटा you're going to have
plus minus 2. But like they said, कि y cannot be negative, y cannot be positive, y is less than 0. So I'm going to assume y value is minus 2 over here. Then they are asking find the argument of a. What is the argument of a? Argument, need to find out this argument. तो देखो हम लोग ने अगर y की वैल्यू let's say if I put up this y value is minus 2 over here in this part of the equation over here, तो y की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 पुट करता हूं तो मेरे पास f of a क्या निकल कर आएगा? सॉरी, वी नीड टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ a, नॉट f of a. तो बेटा हम लोग a की वैल्यू बेटा वी हैव 2 प्लस y आयोटा. तो यहां पर a की वैल्यू is 2 minus 2 iota. You need to find out the argument. Which coordinate is? देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है. So this quadrant, this is basically in the fourth quadrant here. In the fourth quadrant somewhere around over here. तो देखो सबसे पहले तो मैं अल्फा निकालूंगा 10 इनवर्स 2 over 2. I'm going to ignore this minus sign. 10 inverse 2 over 2, it is going to be pi by 4. बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा वाला होता है माइनस अल्फा के, तो माय आर्गुमेंट इज गोइंग टू बी माइनस पाई बाय 4. दिस इज माय फाइनल आंसर. ठीक है ना, ये मेरा आर्गुमेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ. दिस इज माय आर्गुमेंट ओवर हियर. आर्गुमेंट प्रिंसिपल आपको पता है, 0 से लेकर पाई तक होता है और 0 से लेकर माइनस पाई तक होता है हमारे पास. ठीक है ना, तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज था, नीचे की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो ऑब्वियसली मैंने इसको माइनस पाई बाय 4 में लिख दिया. Next, what they are saying, the quad x is equals to quad half x equal to 3x has one root in the equation 0 till pi denoted by alpha. Show that by calculation alpha lies between 0.5 and 1. So देखो, how do we find out this that alpha lies between that alpha is a solution of this equation and that lies between 0 and pi, between 0 and pi. So what I'm going to do, I'm going to make a function. इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा. I'm going to have two functions here and they are subtracting to each other. ठीक है ना? What I'm going to do, they are saying show by calculation that alpha lies between 0.5 and 1. So I'm going to put first x is equal to 0.5. Make sure that your calculator should be in radian mode. And then I'm going to put like f of 0.5. Let's just put it over here. Cot. And then I'm going to put x is equals to 1 over here. If the sign changes, it means your alpha lies between 0.5 and 1. So what I'm going to do, I'm going to shift to my calculator. I'm going to write cot half x. I cannot write cot half x, so better 1 upon 10, 0.5 into 0.5 minus 3 into 0.5. It is basically a positive answer, 2.416. I'm going to shift. So I'm going to write the explanation for this. तो हम यहाँ पे एक स्मॉल स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि since 2.416 is greater than 0 and minus 1.169 is less than 0. इसमें हमारे पास साइन चेंज हो रहा है. तो अब यहां पर आप स्टेटमेंट ये लिख दो, लेट्स से कि since sign is changing, less than 0 हो रहा है, जगह greater than 0 हो रहा है. So you're going to write 2.416 is greater than 0, minus 1.169 is less than 0. The difference in y values of the function changes the sign
विच मीन द ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग एट बिटवीन 0.5 एंड 1। एक आपने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी, आपको 2 मार्क्स पूरे यहाँ पर फिर मिल जाएंगे, ठीक है ना। देन दे आर सेइंग शो दैट इफ सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव values given by iterative formula converges, that it converges to alpha। तो देखो यहां पर we need to show कि आपके पास ये जो अल्फा आप निकाल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि 0.5 1 के दरमियान है, जो कि इन दोनों का सॉल्यूशन है, वो इस स्टेटमेंट से निकल कर आ सकता है, वो इस आइटरेटिव फॉर्मूले से बनकर आ सकता है। तो आइदर यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म और आइदर यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये अब आप पे डिपेंड होता है कि आप इसको किस तरह अरेंज करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने ऊपर से इक्वेशन को कॉपी करा, ये कॉर्ड हाफ एक्स इक्वल्स टू 3x, ठीक है ना। देखो राइट हैंड साइड में बता रही है कि हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर बेटा मैंने लिखा 1/10 हाफ एक्स इक्वल टू 3x। अब यहां पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस 3x ओवर हियर, 10 हाफ एक्स यहां पर आ गया, अब इसमें हमें खुद से कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास देखो यहां पर अगर मैं 10 इनवर्स यहां पर ले आता हूं, 10 इनवर्स 1/3x, तो ये बन जाएगा x/2, ठीक है ना। अब अगर आप x को यहीं पर रहने देते हो और 2 को इधर मल्टीप्लाई कराते हो, 2 10 इनवर्स 1/3x, ये हो गया x के बराबर। अब देखो हमारा x तो आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट द सेम x जो यहां पर निकल कर आ रहा है। देखो हमारे पास ये x की वैल्यू आ रही है 1/3 xn+4 10 इनवर्स 1/3x, हमारे पास उससे भी आ रहा है 2 10 इनवर्स 1/3x आ रहा है। हमारे पास तो एग्जैक्टली वो चीज निकल के नहीं आ रही। अब या तो इसमें कोई वर्किंग करनी पड़ेगी हमें, या तो खुद इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाओ कुछ, कि हमारे पास बेटा ये स्टेटमेंट बन जाए। तो ये यहां पर अभी एज अ डिफिकल्ट पोजीशन लग रही है कि हम किस तरह इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएं, क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएं कि यहां पर ये बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा इसके बजाय इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम लोग बेटा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कॉड हाफ एक्स इक्वल टू 3x के। वरना यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय खुद से वैल्यूज करनी पड़ेंगी ताकि हमारे पास वो इक्वेशन बनकर आ जाए। तो हमने क्या करा, देखो लेट्स से अगर मैं इसको इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1/3 x+4 10 इनवर्स 1/3 x ओवर हेयर एंड देन होल ब्रैकेट। तो 3 देखो तो क्रॉस मिला हुआ, x+4 10 इनवर्स 1/3x हो गया, x लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया, 3x - x कितना हो गया 2x हो जाएगा ये। अब आपको समझ में आ रहा है कि अब देखो ये हमारे पास 2 1 2 4 कैंसिल हो गया, x/2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3x हो गया। इफ यू जस्ट पुट 10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम 10x/2 इज इक्वल टू 1/3x। अब देखो यहां पर मैं 3x इधर लेके आ रहा हूँ, 1/10 x/2 इधर लेकर आ रहा हूँ। यू नो दिस के 1/10 x/2 क्या हो जाएगा, cot x/2। देखो वही स्टेटमेंट आ गई, सही है ना। या तो आप इस तरह प्रूफ कर दें,
दूसरा जो पिछले वाले मेथड था उसमें खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो उससे खुद से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता। देखो हमारे पास इसका उल्टा प्रोसेस चल रहे हैं आप। अगर उधर ये करते हैं ना आप यहाँ पर, लेट से यहाँ पर आप या वो साइड पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यू गेट 4 tan 1 1/3x। अब वो साइड x ऐड करवा दो, तो देखो ये 3x इज इक्वल टू 4 tan 1 x प्लस 4 tan 1 1/3x आ जाएगा। अब 1/3 बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू गेट x प्लस 4 tan 1 1/3x। ये देखो वही चीज आ गई जो हमारे पास प्रूफ हमें करनी थी। हो जाएगा x n+1, हो जाएगा n, हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी n लिख देंगे हम लोग। लेकिन ये काम आपको रिवर्स करने पर आया, क्या आपने जब रिवर्स काम करा तो आपको समझ में आया, वरना तो यहाँ पर आप ऐड सब्ट्रैक्ट खुद से करते और यहाँ पर बेटा विदाउट ऐड सब्ट्रैक्ट करे हुए हमारे पास चीज प्रूव होकर आ गई। तो आपने वाइस वर्सा करना है, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। Then it says use iterative formula to calculate the value of alpha, correct to 2 decimal place, give the result to each iteration for into 4 decimal place। तो देखो बेटा मैंने करा क्या, यहाँ पर मैंने ऊपर जो हमारे पास जो आइडेटिव फॉर्मूला की इक्वेशन थी इसी को कॉपी करना है। ये n है, ये n है। अब देखो यहाँ पर हम लोग आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। आइट्रेशन के लिए बेटा आप n की वैल्यू खुद से फॉर एग्जांपल 1 ले लो यहाँ पर, और जब x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा x2 1/3 x1 4 tan 1 1/3 x1। तो सर यहाँ पर x1 की वैल्यू है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? तो ये भी आप x1 की वैल्यू, इनिशियल x की 1 की वैल्यू, मैं तो ये कहूंगा 0.5 और 1 के दरमियान आपका रूट लाई कर रहा था ना, हमने ये प्रूफ करा था। तो आप x की इसकी मिड वैल्यू ले लो, 0.75 पिक कर लें आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जब x2 1/3 x1 की वैल्यू 0.75 रखें, 4 tan 1 1/3 x1 की वैल्यू 0.75 रखें यहाँ पर। अब आप बस कैलकुलेटर में इस आंसर को लिखें, इस वैल्यू को लिखें 1/3 और इसकी आइट्रेशन करते रहेंगे हम लोग। 0.75 plus 4, make sure your calculator should be in reading mode। तो फर्स्ट आइट्रेशन यानी x2 का आंसर आ रहा है 0.8076। उसको हर एक आइट्रेशन का आंसर 4 डेसिमल प्लेस में चाहिए। अब बेटा मैंने क्या करा, जहां पर मेरे पास 0.75 लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर में, जहां पर मैंने 0.75 लिखा हुआ है, यहां पर बेटा मैं आंसर एनएस लिख लूंगा, और मेरी अब सेकेंड आइट्रेशन का आंसर आ जाएगा, यानी अब मेरे पास x3 का आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.80, सॉरी 0.7911 आ रहा है। फिर मैं इक्वल टू खुद ब खुद दबाऊंगा, कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वल टू दबाने की जरूरत है। आई गेट 0.7953। फिर मैं इक्वल टू दबाऊंगा, कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आई गेट 0.7942। फिर मैं इक्वल टू दबाऊंगा, आई गेट एक्स इज इक्वल टू 0.7945। फिर मैं इक्वल टू दबाऊंगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ x7 विच इज 0.7944। तकरीबन अब आंसर सेम ही आने लगा है। एक्स रेट आ रहा है 0.7945। अभी देखो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, सेम आने लग जाएंगी या तकरीबन रिपीट होने लग जाएंगी। ये रिपीट हो रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो इधर हमारे पास देखो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हमारे पास अब जो एक्स की वैल्यू आ रही है
अच्छा, हमारे पास अब जो एक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.7945, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब बेटा हम इसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे, जो उसने सवाल में बोला हुआ है। 0.79 इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर है। इसने सवाल में बोला हुआ था बेटा गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है ना। इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 दे आर आस्किंग यू के इक्वेशन में से dy बाई dx निकालो। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा, इसमें dy बाई dx निकालेंगे। पहले आप 3x का डेरिवेटिव लेंगे दैट इज 6x, और यहां पर बेटा आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। u y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y दैट इज कॉपी x का डेरिवेटिव 1 फोर द कोएफिशिएंट था। 3y² का डेरिवेटिव 6y dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू 5। 5 का डेरिवेटिव बेटा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा 6x प्लस 4x dy बाई dx प्लस 4y इज इक्वल टू 6y, सॉरी, प्लस 6y dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। मैं देखो इन दो टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन निकालूंगा। आई गेट 4x प्लस 6y। बाकी दोनों टर्म्स को बेटा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, -6x माइनस 4y, और dy बाई dx बेटा मेरे पास निकल कर आ जाएगा -2 कॉमन निकालो यहां से, जो उसने बोला हुआ है वैसे ही आंसर में देना है। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y अपॉन, और इधर भी 2 कॉमन निकाल के बेटा मैंने इन दोनों को नीचे शिफ्ट करा। यू गेट 2x प्लस 3y, कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज एग्जैक्टली द सेम जो वहां पर उन्होंने बोला हुआ है 3x, क्योंकि इन्होंने माइनस बिल्कुल मिड में लगाया हुआ है ना, मिडिल में। ये देखो, तो ये जरूरी नहीं कि फिर आप ब्रैकेट डालें यहाँ पर। प्रूव हो गई बात। उसके कह रहे हैं हेंस फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो अगर टेंजेंट आपके पास पैरेलल टू दिस लाइन है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये आपके पास dy by dx है, दिस इज योर dy by dx ओवर हियर। दिस dy by dx is also called the gradient of the tangent। इसको हम लोग टेंजेंट का ग्रेडियंट भी कहते हैं, सही है ना। तो अब ये टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है, तो y प्लस 2x इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिखूं y इक्वल टू -2x, तो इस लाइन का ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस -2 विद दिस ग्रेडियंट, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है, टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो इनके ग्रेडियंट आपस में बराबर होंगे। तो बेटा मैंने -3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -2 करा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 3x प्लस 2y, 2 द 4x, 2 3 द 6y। अब 2y -6y कर दिया मैंने यहां पर, और 4x -3x कर दिया यहां पर। आई एम गोना हैव द इक्वेशन x इज इक्वल टू -4y। इसको फिर से लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -4y। अब देखो ये हमारे पास कर्व के x और y है, और कर्व की इक्वेशन भी ये रही। अब कर्व पे टेंजेंट बन रहा है ना, जिसपे हमें पॉइंट निकालना है। कर्व पे टेंजेंट बन रहा है हमारे पास, जिसपे हमें पॉइंट निकालना है। ओके, तो देखो हमने, ये भी टेंजेंट का ग्रेडियंट था, ये भी टेंजेंट का ग्रेडियंट था, ये इस लाइन का ग्रेडियंट था y प्लस 2x। तो दोनों टेंजेंट और लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसलिए बेटा इनके ग्रेडियंट को आपस में इक्वेट कर दिया मैंने। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, मेरे पास x इक्वल टू -4y इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट निकालना था, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट वी नीड टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। मैं इस लाइन को इस कर्व के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। देखो कर्व की इक्वेशन मैंने अब कॉपी कर लिया यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पर x की जगह 4y पुट कर दिया। ये देखो -4y का होल स्क्वायर, x इज -4y, y प्लस 3y स्क्वायर को 5।
ये जगह 4y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 into 3 is 48y square minus 16y square plus 3y square is equal to 5. 48 minus 16 plus 3, it is going to be 35. Y square. तो y square की वैल्यू 5/35 which is equal to 1/7. तो बेटा y की वैल्यू प्लस माइनस √7, y के लिए प्लस माइनस √7 बनेगा। तो y की वैल्यू अब देखो, हमें x इज इक्वल टू 4y में पुट कर लूंगा दोनों वैल्यूज। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/√7, एग्जैक्ट बोला था इसलिए डेसिमल में नहीं निकाल रहा। और x की वैल्यू जाएगी -4/√7. So I'm going to have 4/√7, the value of x, and the value of y 1/√7. ये बेटा मेरे पास x और y की वैल्यूज निकल कर आ गई, एग्जैक्ट वैल्यूज। Now in question number 8 it says solve this differential equation. तो देखो e की पावर 2x + 1 ऑन द लेफ्ट हैंड, dy यहीं रहने दिया मैंने, 1/4 प्लस 9y² लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, डिवाइड कर दिया। e की पावर 2x को मैं न्यूमरेटर में लेकर गया, -2x -1, और dx भी न्यूमरेटर में ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। dx को राइट हैंड साइड पे लेकर गया और 4 + 9y² को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया। अब देखो ये हमारे पास, और e की पावर 2x + 1 को फिर न्यूमरेटर में लेकर आया, तो बेटा पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर तो बहुत आसान है। यहां पर जरा गौर से देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास, मैं इसको जरा सा अरेंज करके लिख रहा हूं। और किस तरह अरेंज करके लिख रहा हूं, 9y² + 4dy करके लिख दिया, और इसको -2x -1, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां से बेटा मैं इंटीग्रेशन इस तरह करूंगा कि देखो होल ब्रैकेट पावर हमारे पास -1 है, और MF19 में हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं वो फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। MF19 में बेटा वो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1/x² + a² की इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a होती है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास देखो होल ब्रैकेट पावर -1 है और वेरिएबल पर स्क्वायर है, और ऊपर डिफरेंशियल भी मौजूद नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां पर x और कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे बाय टेकिंग 9 कॉमन। तो ये देगा 4/9, नाउ दिस 4/9 कैन बी रिटन एज, मैं बहुत डिटेल मेथड कर रहा हूं यहां पर, 2/3 का होल स्क्वायर, मुझे स्पेस कम पड़ जाएगी लेकिन चले। तो यहां पर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा बेटा, 1/2/3 tan इनवर्स y/2/3 इज इक्वल टू e की पावर -2x -1 का इंटीग्रल, e की पावर -2x -1 डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द पावर विच इज -2, प्लस c लिख दिया मैंने यहां पर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, कि हम 1/9 को मल्टीप्लाई करा दें 1/2/3 से, तो बेटा ये आएगा 1/6, और ये जगह tan इनवर्स 3y/2 इज इक्वल टू माइनस e की पावर -2x -1/2 प्लस c। अब c निकालने के लिए उसने सवाल में हिंट दिया हुआ है, अगेन मैंने स्पेस ज्यादा ले लिए। c निकालने के लिए इसने y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1 बताई हुई है। x की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6 0। ये जगह e की पावर -3/2 प्लस c,
तो सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊँ, जगह ई की पावर -3/2 इज इक्वल टू सी, या इसको आप 1/2 ई की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आई एम गोइंग टू पुट दिस ई वैल्यू इन द इक्वेशन जो यहां पर लिखी हुई है, 1/6 10 वर्ड्स 3y/2 इज इक्वल टू ई की पावर -2x -1 -2। मैं इसको यूं ही लिख देता हूँ, ई की पावर -3/2 लिख देता हूँ, है ना, इसको छोड़ देता हूँ। अब देखो, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन उसने क्या मजीद कोई फरमाइश करी, उसने बोला y इन टर्म्स ऑफ x निकाल के दिखाएं, इसका मतलब वी हैव टू मेक y द सब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 10 इनवर्स 3y/2, इधर तो एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, और ये जो 6 है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, तो ये बन गया 3 ई की पावर -3 को मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस ई की पावर -2x -1 को बाद में लिख रहा हूँ, और जगह 10 इनवर्स 3y/2, 10 वर्स उधर बेटा 10 बन जाएगा, 10 3 इंटू ई की पावर -3 ई की पावर -2x -1 3y/2। y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो 2/3 10 3 इंटू ई की पावर -3 ई की पावर -2x -1, ये भी देखो हमारे पास y सब्जेक्ट बनकर आ गया। तेरा स्टेट व्हाट हैपन व्हेन y टू y वैल्यू व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी बन जाए तो y की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा करवा दूं, देखो मैं यहां पर ई की पावर -3 को तो ऐसे रहने दे रहा हूं, लेकिन ई की पावर -2x -1 को 1/2x+1 लिख रहा हूं, क्यों, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह क्या है कि जब मैं यहां पर इन्फिनिटी लिखूंगा ना एक्स की जगह, एक्स सिर्फ यहां पर है, तो ये पूरा इसको इन्फिनिटी बना देगा। अगर मैं यहां पर इन्फिनिटी लिखूंगा ना, इन्फिनाइट हो गया ना ये, अभी पूरा इसको इन्फिनिटी बना देगा, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया तो बेटा हमारे पास कोई मसला वाली बात नहीं है, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो आपके पास y इज इक्वल टू 2/3 10 3 ई की पावर -3 हो जाएगा, यहां पर एग्जैक्ट फॉर्म में देना था इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया आंसर। तो देखो यहां पर 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर रख के इन्फिनिटी रखता ना, तो पूरे क्वेश्चन को इन्फिनिटी बना देता। तो हमें तो अपने क्वेश्चन को इन्फिनाइट होने से बचाना होता है, इस वजह से पहले मैं इसको नीचे लेकर आया, ई की पावर -2x -1 को नीचे +2x+1 कर दिया, फिर इन्फिनिटी लिमिट पुट करी ताकि ये पूरा डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए। 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, तो ये पूरा 0 हो गया, ई की पावर -3 यहां पर हमारे पास निकल कर आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज एक्सप्रेस एफ एक्स इन दी पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह बनाऊंगा कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में एक दोनों, एक लीनियर फैक्टर है और एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। सो आई एम गोना राइट a अपॉन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, then b upon repeated linear factor with the power 1, and then c upon repeated linear factor with the power 2। अब इधर मैं एलसीएम ले लूंगा, my LCM is going to be 1 plus 2x into 2 minus x a whole square। तो a के साथ आई एम गोइंग टू हैव 2 minus x whole square, b के साथ आई एम गोइंग टू हैव 1 plus 2x and then 2 minus x, and with c I'm going to have 1 plus 2x after taking an LCM। अब देखो न्यूमरेटर, आई एम गोइंग टू कंपेयर द न्यूमरेटर, सो आई एम गोइंग टू राइट न्यूमरेटर फर्स्ट, न्यूमरेटर को लिखूंगा यहां पर, मैं
अब इस न्यूमरेटर में आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, सेल्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करूंगा, उससे जल्दी काम हो जाएगा। व्हाट वैल्यूज आई एम गोइंग टू पुट, मैं देखो इधर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 + 2x और 2 - x, इसको इक्वल टू 0 करूंगा। सो आई एम गोइंग टू हैव द वैल्यू x = -1/2 एंड आई एम गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ x = 2 ओवर हियर। तो बेटा मैं x की वैल्यू सबसे पहले यहां पर पुट करूंगा 2। जब मैं x के लिए 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 17 × 2 - 17। तो ये हो जाएगी बेटा वैल्यू हमारे पास, इट इज गोइंग टू बी 25 हियर। राइट हैंड साइड पे बेटा अगर मैं 2 यहां पर पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 यहां पर पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बच जाएगा 5 के साथ। तो 5c हो गया बेटा, c की वैल्यू 5 आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहां पर 2 = -1/2 होल स्क्वायर प्लस 7 × -1/2 -17। अब यहां पर बेटा मैं -1/2 पुट करूंगा ना तो ये पूरा b 0 हो जाएगा, यहां पर -1/2 पुट करूंगा पूरा c 0 हो जाएगा। सिर्फ a के साथ 2 -1/2, तो 2 + 1/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये सब 0 हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है 25 -25 और राइट हैंड साइड पर आ रहा है 5/2 का स्क्वायर 25/4। 25 to 25 कैंसिल, a की वैल्यू -4 आ गई। अब c निकालना है, अब b निकालना है। सो यू कैन पुट एनी वैल्यू, क्योंकि अब तो कोई वैल्यू पता नहीं अब, तो आप सेल्फ डिविजन में कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यू कैन पुट एनी अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम x = 2 एंड x = -1/2। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पर। आई गॉट 2 0 का स्क्वायर प्लस 17 × 0 -17। ये 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा। 1 + 2 × 0 1 बच जाएगा, 2 - 0 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2b हो जाएगा। And then if you put the b to 0 x = 0 over here, it becomes c into 1। अब यहां पर बेटा -17 a की जगह -4, b की जगह यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b तो निकालना है हमें, और c की जगह बेटा आई एम गोइंग टू पुट 5। तो आफ्टर सिंप्लीकेशन -17 -4 into -4 -5, आंसर इज -6 divided by 2। The value of c is -3, b is -3। जो तो जो वो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए बोल रहा था बेटा, मैं इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा हूं और बस इसकी जगह आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होकर आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हैंड शो दैट द इंटीग्रल ऑफ दिस, हमें शो करना है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। इस फंक्शन की हमने पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी करी हुई है, इंटीग्रल निकाल लेते हैं और लिमिट पे पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रल क्या होगा, -4 ln लगेगा यहाँ पर, ln 1 + 2x डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द एंगल विच इज 2 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास, -3 ln 2 - x डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ द एंगल 0 - 1। और यहां पर बेटा ये 2 - x की पावर -2 बन जाएगा ऊपर जाकर पहले। तो इसमें बेटा पहले मैंने ऐड 1 इन दी पावर करा और डिवाइड बाय दी पावर करा, -2 + 1 डिवाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ दी बेस विच इज 0 - 1 प्लस सी लगा दिया। और फिर हमारे पास ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिमिट। तो लिमिट मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारी लिमिट है 1 से लेकर 0 तक। तो पहले मैं उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये हो जाएगा -2 ln 1 + 2x, ये +3 हो जाएगा ln 2 - x, और ये हो जाएगा -2 + 1 -1 -1 इंटू -1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 - x की पावर 1 प्लस सी हो गया। अब मैंने हर जगह 1 अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा
2 into 1, 2 minus 1, 2 minus 1 plus c. देखो मैंने पूरी लिमिट अप्लाई कर दी है। अब देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई एम गोइंग टू गेट -2 ln 2 1 2 ln 3 हो जाएगा ये जगह ln 1, ये जगह 5 प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, बल्कि ब्रैकेट को भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। -2 ln 1, ये +2 ln 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 ln 2 हो जाएगा, और ये जगह 5/2, और प्लस सी से माइनस सी कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ln 1 0 होता है हमारे पास, ये भी ln 1 0 होता है, तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ये 0 होता है हमारे पास वैल्यू। सो आई एम गोना हैव -2 ln 3 प्लस 5 -3 ln 2 प्लस 5/2। तो 5 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5/2 15/2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर आई एम हैविंग ln 3 पावर पॉजिटिव -2 है, और इधर मैंने ln 2 पावर -3 कर दिया, मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया यहां पर। अभी क्या हो जाएगा बेटा? ln 1/9 ln 1/8 प्लस 15/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंगल ln में आके, 1/9 8 72, ln 1/72 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं, इसलिए बेटा 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर +15/2 लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर जो आ रहा है वो 5/2 आ रहा है। अ, अच्छा, यहां पर ये माइनस था, मैंने प्लस लगा दिया था इस वजह से। 5 माइनस 5/2, ये 5/2 हो जाता है। तो है ना, अब ऊपर तो ln 72 आ रहा था, 1/72 तो नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर मैं 72 को न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो 72 की पावर -1 हो जाएगी, और ये 5/2 हो जाएगा। अब माइनस कोफिशिएंट बन जाएगा, -ln 72 प्लस 5/2, तो 5/2 -ln 72 हमारे पास प्रूव होकर आ गया। ठीक है जी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो आपसे बोला है फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द एम। एम क्या है बेटा? मैक्सिमम पॉइंट है कर्व का। तो कर्व का बेटा dy बाई dx निकालना है, कर्व का dy बाई dx निकालना है। यानी आपने यहां पर dy बाई dx निकाला, u एज इट इज कॉपी, √3 - 2x डेरिवेटिव 1/2 √3 - 2x हो जाएगा, और 3 - 2x डेरिवेटिव 0 - 2 हो जाएगा, प्लस √3 - 2x एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने, और x + 5 का डेरिवेटिव 1 + 0। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 5/2/3 - 2x, और √3 - 2x तो एज रह गया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको इक्वल टू 0 कर दें आप, ताकि मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकें। ये 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये हो गया -x + 5/√3 - 2x
अब देखो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x+5/3 - 2x इक्वल टू 3 - 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x+5 एडिस बचेगा, 3 - 2x मल्टीप्लाई बाय 3 - 2x रूट के अंदर, तो 3 - 2x बच जाएगा यहाँ पर। ये 2x इधर आके 3x बन जाएगा, और 3 - 5 बेटा हमारे पास ये बन जाएगा -2, x की वैल्यू -2/3 आ गई। आई एम गोना पुट दिस x वैल्यू -2/3 इन द कर्व इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y पे तो निकालना है। तो y बराबर है x+5, तो x की जगह -2/3, और √3 - 2x। तो y इक्वल टू 2/3, 8, 5 या 15, 15 माइनस 2, 13/3 हो जाएगा ये, और रूट के अंदर बेटा ये माइनस माइनस प्लस 3 + 4/3, ये √13/2/3। तो ये आपके पास बेटा y की वैल्यू आ गई। तो आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ गया -2/3, 13√3/3 यूं करके लिख दो, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन y u = 3 - 2x, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंड बाय द कर्व, गिव यू आंसर इन दिस फॉर्म a√3। तो भाई ये आपके पास कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, u बराबर है 3 - 2x के, उसने बोल दिया। तो हमें तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना, द शेडेड रीजन बाउंड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो यहां पर बेटा एक्स एक्सिस पे इनकी वैल्यूज क्या है ये भी तो मालूम करनी है। तो बेटा हमने y को इक्वल टू 0 कर दिया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सामने सामने, बोलिए चलो यहाँ पर कर देते हैं, y की जगह 0 पुट करा, तो x की वैल्यू से पहले निकालने जिनके दरमियान हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, लिमिट्स तो निकालें। तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ रही है, ax की वैल्यू आ रही है 2/3, 3/2। अब आपने बेसिकली इंटीग्रेशन करनी है, एरिया का फॉर्मूला होता है y b एन ए, b वैल्यू इज 3/2, a वैल्यू इज -5 dx, इससे आपके पास एरिया निकल कर आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए उसने सब्स्टिट्यूशन करवाई हुई है, u बराबर है 3 - 2x के, तो du/dx क्या आ जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा। तो बेटा du बराबर हो जाएगा -2, -du/2 बेटा हमारे पास बराबर हो जाएगा dx के। तो इन दिस क्वेश्चन ये तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारे पास, u रूट में कन्वर्ट हो गया, dx कन्वर्ट हो गया -du/2 में। तो x+5 किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा मैं x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, 3 - u, और x की लगेगी 3 - u/2। तो यहां पर बस मैं x की जगह 3 - u/2 लिख दूंगा, 3 - u/2 + 5। अब बस मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अच्छा लिमिट भी हमें पुट करनी होती है। तो u बराबर है 3 - 2x के, तो आप पहले x की जगह 3/2 पुट कर रहे हैं अपर लिमिट, फिर x की जगह -5 पुट कर रहे हैं लोअर लिमिट। तो 3 - 2 इंटू 3/2, बेटा ये आ रही है x की वैल्यू 0 आ रही है, और यहां पर बेटा अगर मैं -5 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 13। देखो ये अपर लिमिट थी,
और ये लोअर लिमिट थी। अगर मैं अपर लिमिट यहाँ पर 0 से रिप्लेस कर दूं और लोअर लिमिट 13 हो गई यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है अपर लिमिट छोटी और लोअर लिमिट बड़ी है, तो ये तो मसला है। तो आप इसको सॉर्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, अभी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 13 इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पर 0 लिख दिया। 3 माइनस यू प्लस 5, 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 माइनस यू प्लस 10 अपॉन 5 अपॉन 2, और ये रूट यू मैंने एज लिख दिया। माइनस, पहले लिख दिया माइनस यू अपॉन 2 था, तो माइनस यू अपॉन 2 था। अच्छा, अब ये देखें, कभी भी आप लिमिट चेंज करते हैं ना, तो माइनस से पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 0 की जगह मैं यहाँ पर 13 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। एक माइनस पहले से लगा हुआ था, एक माइनस मैंने खुद से इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि मैंने लिमिट चेंज करी है। 3 + 10 13 हो गया। 13 माइनस यू अपॉन 2, यू गया रूट यू, और नीचे 2 to the 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 13 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/4 मैंने कोफिशिएंट लिख दिया। ये जगह मल्टीप्लाई हो रहे थे 13u, 13 रूट यू, और माइनस यू मल्टीप्लाई बाय रूट यू, तो यू की पावर 3/2 हो जाएगी। बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगे। अब बेटा मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट्स। ये 1/4 एज इट इज रहा। लिमिट हमारे पास 13 और 0 थी। अब मैं लिमिट तो हटा रहा हूं, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा। 13 u की पावर 1/2, एड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर 3/2, यहाँ पर 3/2, 3/2 प्लस 1 5/2, यहाँ पर 5/2 प्लस सी हो जाएगा। और लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट इज 13 इन 0, ये u की लिमिट है हमारे पास। तो 1/4 एज इट इज रहा, जो कि 26/3, यू की पावर 3/2, ये जगह 2/5, यू की पावर 5/2 प्लस सी। लिमिट हमारे पास 13 एंड 0 है। बस अब हमें लिमिट पुट करनी है एंड विल गेट दी आंसर। तो देखो यहां पर हमने यू की पावर, ये मैंने लो लिमिट पुट कर दी, माइनस अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लो लिमिट। तो नीचे तो सब 0 हो जाएगा, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा सेकंड लिमिट में। तो 1/4 26/3 इंटू 13 की पावर 3/2। उसको a√3, इसको फॉर्म भी एग्जैक्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो मैंने 26 को ऐसे लिखा, 13 की पावर 3/2 हो जाता है 13√3, 13 माइनस 2/5 ऐसे रहा, 13 की पावर 5/2 हो जाएगा। 13 की पावर 5/2 अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो देखो 13 की पावर 5 होल ब्रैकेट पावर 1/2। तो देखो 13 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 13 × 13 × 13, 13 5 टाइम्स लिख सकता हूँ। तो पेयर्स में हमारे पास स्क्वायर रूट में जो पेयर्स होते हैं ना, वो सिंगल होकर बाहर हो जाते हैं, और एक अंदर बच जाएगा 13 की पावर 1/2। तो 13 × 13 169√13 हो जाएगा ये। सही ना। इसी तरह 13 की पावर 3/2 भी मैंने इसलिए करा कि 13 × 13 × 13 की पावर 1/2। तो देखो दो 13 मिला के एक पेयर बन गया, एक 13 बाहर निकल गया, एक 13 रूट के अंदर रह गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 26 × 13, इट इज 338
√13/3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 169, 338, √13। एलसीएम ले लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 338, इट इज 1690, 3 मल्टीप्लाई बाय 338, इट इज 1014 अपॉन 5 अपॉन 15, और ये दोनों के दोनों √13 का कोफिशिएंट है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1690 minus 1014, you get 676 √13 upon 15 divided by 1/4. You will get 169 upon 15 √13. ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, इसका फाइनल आंसर। और यहां पर अगर वो पूछता है भाई ए की वैल्यू भी बतानी है, वेर एज रैशनल फॉर्म, वैसे ए की वैल्यू पूछी भी नहीं है, वरना ए की वैल्यू बेटा 169 अपॉन 15 है। मैंने इस फॉर्म में आंसर निकाल कर दे दिया। Then question number 11, last question. It says the points A and B have the position vector. The line L has the equation. Show that L does not intersect the line passing through L, A and B. तो देखो सबसे पहले आप लाइन ए बी की क्वेश्चन निकाल के दिखा दो। ठीक है ना? तो यहां पर अगर लाइन ए बी की क्वेश्चन निकालनी है आपने, तो लाइन की क्वेश्चन होती है बेटा ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। बी इज अ डायरेक्शन वेक्टर हियर, तो बी की वैल्यू निकालना यानी ए बी वेक्टर निकाल लो आप। इससे डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर डायरेक्शन वेक्टर विच इज ओ बी माइनस ओ ए। So what is OB? OB is 2 minus 1 and 1. This is OB, the position vector of B. What is OA? The position vector of A. 1, 2, minus 2. इनको subtract कराओ, you'll get the B vector. 2 minus 1, 1 हो गया, minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 हो गया, 1 minus minus 2 ये हो गया 3 हो गया. So you got the B value, the position vector over here. और ए की जगह कोई से भी पॉइंट पुट कर दो, या तो ए पॉइंट पुट कर दो या तो बी पोजीशन वेक्टर पुट कर दो। लेट्स से मैंने ए पुट कर दिया, तो आई प्लस 2j माइनस 2k, मैंने ये पॉइंट पुट करा ए की जगह, लैम्डा टाइम्स आई माइनस 3j प्लस 3k। बेटा ये आपके पास ए बी की क्वेश्चन निकल कर आ गई। ये बेटा आपके पास ए बी हमने यहां पर कॉपी कर लिया आईजे की फॉर्म में। अब शो दैट एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू इन बी। तो यहां पर ये जो लाइन है जो इन्होंने दी हुई है एल, वो है आई माइनस जे प्लस 3k प्लस म्यू टाइम्स 2 माइनस 2 आइटा माइनस 3j प्लस 4k। ये लिखी हुई है ना। अभी लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, अगर आप इसको जो है ना, अगर बेटा आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, इस इक्वेशन को, तो आपको यूं लिखेंगे, आर बराबर है 1 प्लस लैम्डा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा, इसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 प्लस 3 लैम्डा। और बेटा अगर आप इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, तो जाएगी 1 प्लस 2 म्यू, ये जगह -1 -3 म्यू, और ये जगह बेटा 3 प्लस 4 म्यू। मैंने दोनों वेक्टर की इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख दिया। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हुए तो बेटा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट
और दोनों के z कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। तो देखो मैंने लिखा 1 + λ इज इक्वल टू 1 + 2 λ, 2 म्यू। 2 - 3λ इज इक्वल टू -1 - 3 म्यू। -2 + 3λ इज इक्वल टू 3 + 4 म्यू। ठीक है ना। अब इन दोनों को बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से क्या होगा, हमारे पास म्यू और तो यहां पर म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और वो थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा। जैसे मैंने इक्वेशन में 1 को पिक करा, दिस इज इक्वेशन में 1, और इधर से बेटा मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 + लैम्डा बराबर था 1 + 2 म्यू के। तो लैम्डा बराबर हो गया 2 म्यू के। तो सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास 2 - 3λ। यहां पर बेटा मैं लैम्डा की वैल्यू 2 म्यू पुट करूंगा ऑन द इक्वेशन में 1, एंड आई एम गोइंग टू हैव द वैल्यू 3 to the 6 म्यू -1 - 3 म्यू। बेटा ये 2 + 1 -3 म्यू + 6 म्यू, इट इज गोइंग टू बी 3, जगह बेटा 3 म्यू। तो म्यू की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ रही है, कांस्टेंट की वैल्यू। म्यू 1 आ रहा है तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा, 2 आ रहा है। यू गॉट द लैम्डा 2। अब ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, विच इज -2। तो लैम्डा की जगह 1 और म्यू की जगह, लैम्डा की जगह 2 और म्यू की जगह आई एम गोइंग टू पुट 1। तो जगह 3 और 6, 6 - 2 4 हो गया, और ये हो गया 7। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ फाइंड द पोजीशन ऑफ द फुट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to L। अब देखो अगर मैं ए पॉइंट देखूं ऊपर, आई गॉट दिस ए पॉइंट I + 2j - 2k। लेट से ये ए पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, और लाइन एल है ये। व्हाट इज लाइन एल? एल वो इक्वेशन जो सवाल में दी हुई है, I - j + 3k प्लस म्यू टाइम्स 2i - 3j + 4k। अब कह रहा है यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा, कह रहे हैं इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की पोजीशन वेक्टर बता दो, इसका पोजीशन वेक्टर बता दो, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा आपके पास ए पॉइंट पता है, नाउ दिस लाइन ओवर हियर, इस पर बेटा ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में देखूं तो बेटा ये पॉइंट वही है जो लाइन का ही पॉइंट होगा, लाइन का ही तो पॉइंट है। तो लाइन तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं लाइन को यूं लिख दूं, जैसे मैंने पहले लिखा इस लाइन को, तो बेटा ये लाइन का ही तो पॉइंट है हमारे पास। मैं इस लाइन को मैंने यूं लिख दिया कार्टेशियन फॉर्म में, 1 + 2 म्यू -1 - 3 म्यू 4 + 4 म्यू। अब देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट इसी लाइन से तो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मैं कहूं ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 + 2 म्यू है, बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट, इसी लाइन का तो पॉइंट है वो। अब ये लाइन का पॉइंट और ये ए पॉइंट, लेट से मैं इस पॉइंट को एक्स कह देता हूं, ठीक है ना। मैं इस पॉइंट को एक्स कह देता हूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा ए एक्स वैक्टर निकालो, तो आप किस तरह निकालोगे? सर ये ओ एक्स - ओ ए करके निकालोगे। ओ एक्स क्या है? ये देखो ऊपर एक्स पॉइंट को ओ एक्स ही कहते हैं हम लोग। 1 + 2 म्यू -1 - 3 म्यू और 3 + 4 म्यू।
देखो ये x पॉइंट हमारे पास पोजिशन वेक्टर होगा ना ओ एक्स, और हमारे पास ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए पॉइंट ऑलरेडी सवाल में गिवन था, विच इज 1 + 2j -2k, 1 + 2j -2k, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, इनको सब्ट्रैक्ट करवाया, तो बेटा 1 + 2 म्यू -1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 म्यू हो जाएगा, -1 -3 म्यू -2 कितना हो जाएगा, -3 म्यू, और बेटा 3 + 4 म्यू कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, देखो 5 + 4 म्यू हो जाएगा। दिस इज ए एक्स वेक्टर। अब मुझे बताओ ये क्या ये ए एक्स वेक्टर आपके इस डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जी सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ए एक्स डॉट डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखो हमारे पास ए एक्स वेक्टर है, ये पूरा ए एक्स वेक्टर है, मैंने इसको यहां पर रखा, और इसको डायरेक्शन वेक्टर 2 - 3 + 4 से डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रख दिया मैंने यहां पर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 4 म्यू हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 म्यू, ये हो गया +9 म्यू, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 4 4 16 म्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 4 + 9 + 16, ये हो गया 29 म्यू, और ये हो गया +29, तो म्यू की वैल्यू -1 आ रही है। अब म्यू की वैल्यू -1 निकाल ली, ये म्यू को क्या हेल्प करेगा, हमें ओ एक्स जो हमारा पोजिशन वेक्टर था एक्स, वो मालूम करने में मदद देगा। तो बेटा अब यहां पर ये जो ओ एक्स वेक्टर है बेटा, इसमें म्यू की जगह मैंने इसको कॉपी करा यहां पर, और इधर बेटा मैंने म्यू की जगह -1 पुट कर दिया। जब मैं इसको म्यू की जगह -1 पुट दूंगा, आई एम गोइंग हैव -1 -3 या -1 रख दिया, तो आई एम गोइंग टू हैव 1 -2 -1, ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा -1, इसको आईजे की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि सवाल आईजे की फॉर्म में था, -i + 2j -k, ये ओ एक्स वेक्टर निकल कर आ जाएगा, विच इज द पोजिशन वेक्टर। थैंक यू।